ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਸੱਚ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਸੱਚ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਅਜੋਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਅਜੋਨੀ ਹੈ, ਅਜਨਮਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਣੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਾਧਨ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤੋ ਸਾਧਨ ਨੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਦੱਸਿਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਿਯਮ, ਅਸੂਲ, ਮਰਿਆਦਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੂਲ, ਨਿਯਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਗੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਬਈ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੀ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਪਤੀ ਦੇ ਕੀ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰਾਮ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰਜ ਕਰੀਏ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੇਕ ਬਣਨਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ,
तो फिर उपदेश कथा कीर्तन की तो कोई लोड़ ही नहीं, क्योंकि नेक ते बन ही जाएगा, पवित्र ते हो ही जाएगा। झूठ तक पहुंचण की खुल ही ना होवे बंदे नूं, तो फिर सच तक तो इसने पहुंच ही जाना है। फिर गुरुद्वारियां की कोई लोड़ ही नहीं, फिर कथा कीर्तन की कोई लोड़ ही नहीं। मनुख झूठ के मार्ग ते भी चल सकता है, सच के मार्ग ते भी चल सकता है। मनुख अगे भी जा सकता है, मनुख पिछे भी जा सकता है। मनुख अनर्थ भी कर सकता है, मनुख ठीक भी कर सकता है। मनुख धर्म की उलंघना भी कर सकता है, धर्म की पालना भी कर सकता है। कहते हैं पशु पंखियों का जो धर्म बन गया, जो नियम बन गया, उसकी वो उलंघना नहीं कर सकते। उन्होंने जिंदगी बजी हुई है। इस वास्ते हिंदुस्तान के ऋषि मुनि पशु पंखियों को कहते हैं भोग जूनी। ये कुछ भोगण वास्ते ते आए ने, करने वास्ते कुछ भी नहीं। मनुख कुछ करने वास्ते भी आया है। ये चाहे तो मनुखता तो भी अगे जा सकता है। लोग कहते हैं ये बंदा नहीं, ये तो देवता है, ये मनुख नहीं, ये तो फरिश्ता है। पर मनुख चाहे तो पीछे भी जा सकता है। लोग कह देने ने बंदा नहीं, ये तो जानवर है, ये मनुख नहीं, ये तो पशु है, ये बंदा नहीं, ये तो शैतान है, ये बंदा नहीं, ये तो दैंत है। मनुख दे अंदर देवता होने दी ते दैंत होने दी संभावना छुपी हुई है। मनुख दे अंदर पशु होने दी और मनुख दे अंदर पूर्ण रूप दे देवता ते परमात्मा होने की संभावना छुपी हुई है। इस दे वास्ते एक खुल है कि इन्हें चुनाव की करना है, अगे जाना है कि पिछे जाना है। जिहड़ा अगे जाना है वो मैदानी रास्ता नहीं, जमीनी रास्ता नहीं है, पहाड़ी रास्ता है। जिहड़ा नाम जपना है ना, सुरत नूं जिहड़ा तोड़ना है, ये जमीनी रास्ता नहीं है। इनू गुरबाणी ने पहाड़ी रास्ता मने। ते हुण पहाड़ दे उत्ते चलन लगे हैं तो कुछ ना कुछ हिम्मत चाहिए। भगत कबीर कहते ने, जै मार्ग पंडत गए पाछे परी बहीर, एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहे कबीर। औघट घाटी, औघट घाटी उसनों कहते ने जिहदे उत्ते चढ़दे आ बंदे दा दम फुल जाए, जिहदे ते चढ़ना बड़ा औखा होवे ते जिहड़ी घाटी बड़ी सीधी होवे, चढ़ना औखा होवे। इतनी गल ते आसान है कि लहना जिहड़ा है ये सौखा है, चढ़ना औखा है। पहाड़ां ते चढ़ना औखा है, लहना आसान है। हर बंदा पहाड़ां ते नहीं चढ़ सकता, और पहाड़ ते चढ़न वास्ते शरीर दे ताजगी, शरीर दे ताकत, शरीर दे सफुर्ती चाहिए है। मैनूं चंगी तरह याद है, 10-12 साल पुरानी गल, रेठा साहब जा रहे सी ते कुछ मेरे नाल साथी भी तैयार हो गए भी चलिए। रेठा साहब जिला नैनीताल दे च है, एक पूरा पहाड़ लंघ के जाना पैंदा, सड़क नहीं है। गालबन 24 मील की वाट पैदल तय करनी पैंदी है, जिस दे 12 मील पूरी चढ़ाई है। एक चोटी ते चढ़ के फिर लेना पैंदा। लखनऊ दियां संगतां सन नाल चलते पै मेरे, थकिया मैं भी, वो भी बड़े थके। और एक सज्जन ने ते इत्थे तक कह दिता, बाबे नूं ते वक्त पिया ही सी, सानू भी वक्त पै गया। दिन भर चलते रहे, वाट नहीं तय हुई, रस्ते च ठहरना पिया। हालांकि अमृत वेले दे चले, रात दे 10 बज गए, बड़ी मुश्किल नाल अद्धी वाट तय हुई और चढ़दियां चढ़दियां रह गए गोडे। उस वक्त बार बार भगत कबीर की मैनू ये पंक्ति चेते आई, एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। ये जिहड़ा सुरत नूं तोड़ना है ना परमात्मा दे मार्ग ते, ये जमीनी रस्ता नहीं, ये घाटियां दा रस्ता है, पहाड़ी रस्ता है। पानी जिहड़ा है ये निमान की तरफ अपने आप जाता है, अपने आप। पर उपर चाड़ना होवे तो प्रेशर तो चाहिए ना, कुछ दबाव तो चाहिए। सुरत थले अपने आप जाती है। क्रोधी बनना है, लोभी बनना है, कामी बनना है, तृष्णालु बनना है, शराबी बनना है, कबाबी बनना है, दुराचारी बनना है, सुरत थले आप ही जाती है, कोई प्रेरणा की लोड़ नहीं।
ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਚਾੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਚੜੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਲਏ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੁਰਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ। ਕਾਮੀ ਬਣਨਾ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਨਾ, ਲੋਭੀ ਬਣਨਾ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਣਨਾ, ਝੂਠਾ ਬਣਨਾ, ਫਰੇਬੀ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਣਨਾ ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਭਉ, ਸਚਿਆਰ, ਸੰਤੋਖੀ, ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ। ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਾੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਆਸਰੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਤੋ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਆਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੋਧੀ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਉ ਨਿਉ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਐ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਤੇ ਬਲਹਾਰ ਜਾਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਹਾਰ ਜਾਨਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਰਤ ਚਾੜਨਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਔਗਟ ਘਾਟੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਔਗਟ ਘਾਟੀ ਹੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਘਟ ਅਵਘਟ ਡੂੰਗਰ ਘਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ ਘਟ ਅਵਘਟ। ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੀ ਬੜੀ ਵਿਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 3 ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰਨਾਥ ਤੇ ਰੇਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਗਾਲਬਨ 16,000 ਫੁੱਟ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਔਰ 18,000 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਮਰਨਾਥ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 10,000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਬੂਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜਾਈ ਚੜ੍ਹਨੀ ਕਿਤਨੀ ਔਖੀ, ਕਿਤਨਾ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋਕੀ ਯਾਤਰਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੇ ਬੱਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 10-15 ਮੀਲ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10-15 ਮੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੜਾਈ, ਬੜੀ ਵਿਖੜੀ ਚੜਾਈ। ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਚੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ 35 ਮੀਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਔਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੈਂ ਚੜ ਰਿਓ ਕਬੀਰ। ਰਾਮ ਦੀ ਘਾਟੀ ਬੜੀ ਵਿਖੜੀ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਰਤ ਚਾੜਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਐਸਾ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਸ ਵੱਜੇ ਬਈ ਨਿਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਜਦ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ
थानू पता चलेगा इस मार्ग का मैं कल्ला ही पांदी हाँ, और कोई साथी नहीं है भी कोई नहीं, वाकई साथी नहीं। इकबाल होया बड़ा प्रसिद्ध उर्दू का शायर, वो कहता है काफिले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। कहता जिहड़े काफले कट्ठे मनुख चले सन ना खुदा दे मार्ग ते, वो कुछ ते पहुंच गए ने ते कुछ रस्ते च मर खप गए ने। हुण रस्ते उजड़े पे ने, हुण कोई नहीं चलता। चलिया सी जिस रस्ते ते कबीर, अज कौन चल गया। चलिया सी सैन नाई, चलिया सी सदना, चलिया सी बाबा फरीद, चले सन भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा जी, चले सन भाई मनी सिंह, भाई तारो सिंह, भाई दीप सिंह, बाबा दीप सिंह चले सन। तो इकबाल कहने ने किसी वक्त जिहड़े काफले चले सन, कुछ पहुंच गए, कुछ रस्ते च ही खप गए, नहीं पहुंच सके। ते हुण रस्ता उजड़िया पिया। उस रस्ते नूं उजड़िया होया कहने जिहदे उत्ते कोई चले ही ना, रस्ते उजड़ जांदे, कोई चले ही ना। तो इकबाल कहने रस्ता ते बनिया पिया, कोई चलदा ही नहीं, रस्ता उजड़ गया। कुछ चले सन पहुंच गए, कुछ चले सन हिम्मत नहीं, रस्ते च मर खप गए, अज रस्ता उजड़िया पिया। तो गौर कदी मुताला करना, कोई रविदास की तरह नाम जपदा पिया होवे, कोई भाई मनी सिंह जी की तरह नाम जपदा पिया होवे, कोई भाई गुरदास जी की तरह गुरु तो निछावर हो रहा होवे, कोई बाबे बुढ़े की तरह कुर्बान हो रहा होवे, कोई बाबे दीप सिंह की तरह जोश ते जज्बा ते शरधा रखदा होवे। तुसी हुण लभो, कित्थे लभोगे, किस तरह लभोगे? गल ही बड़ी औखी। शराबी मिलणगे, कबाबी मिलणगे, झूठे मिलणगे, फरेबी मिलणगे, झगड़ालू मिलणगे, गल गल दे उत्ते झगड़ा करन वाले मिलणगे। मनी सिंह दे दर्शन कोई नहीं, भाई गुरदास दे दर्शन कोई नहीं, बाबे दीप सिंह दे दर्शन कोई नहीं। ऐसा क्यों है? कबीर कहते हैं ऐसा इस वास्ते है कि रास्ता पहाड़ी है, पहाड़ी रास्ता है, जमीनी रास्ता नहीं है। अवघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। हुण सुरत नूं किवें चढ़ाना है, लफ्ज मैं फिर दोहरा दियां ताकि कुछ जिहड़े नवें सिंह आउंदे ने रोज, उन्हां नूं भी पता चले गल कित्थों शुरू कीती सी। सुरत चढ़ाउण वास्ते कोई लंबे चौड़े ज्ञान की लोड़ नहीं, ये भी मैं अर्ज कर दियां, कतई लोड़ नहीं है। और मैं इतना अर्ज कर दियां कि ठीक है कि अनपढ़ बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, वकील नहीं बन सकेगा, इंजीनियर नहीं बन सकता, अनपढ़ बंदा साइंसदान नहीं बन सकता, पर अनपढ़ बंदा भगत बन सकता है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की एक पंक्ति थोड़े सामने रखा, जो प्राणी गोबिंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। चाहे पढ़ा लिखा है तो चाहे अनपढ़, क्योंकि यह जिहड़ी पढ़ाई उत्थे काम नहीं आउंदी, कतई नहीं आउंदी काम। वरना अज जितनी पढ़ाई है जमीन के उत्ते, इतनी पढ़ाई पहले कदी नहीं सी। मैं पढ़दा अपने हिंदुस्तान का इतिहास, कोई 100 मील के उत्ते एक छोटा जिहा आश्रम हुंदा सी, ਉਹਦੇ ਚ ऋषि मुनि बच्चियां नूं पढ़ाते सन, ते बच्चे हुंदे सन राज घरानियां दे, राजकुमार। हर बंदा कौन पढ़ांदा सी? राज घरानियां दे कोई 5-7 बच्चे हुंदे सन, ऋषि मुनि पढ़ाते सन, या 2-4 किधरे होर आ जाते सन। इस तरीके नाल छोटे छोटे आश्रम चलते सन, ते एक आश्रम तो दूसरे आश्रम की विथ भी 100 मील की होंदी सी। 100 मील तक कोई विद्यालय नहीं, कोई गल नहीं, एक आश्रम हुंदा सी। उस आश्रम दे विच भी बड़ी मुश्किल नाल 10-15 विद्यार्थी जो पढ़ते सन, ते पढ़ते की सन? शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, ग्रह नक्षत्रां दी विद्या, ज्योतिष विद्या, ये ऋषि मुनि पढ़ाते सन। ते अज जमीन के चप्पे चप्पे दे उत्ते स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां मौजूद ने, बड़ी तालीम है, बड़ी तालीम है। पर पता सियाणे की कहते हैं, मनुख अज जितना बेचैन है, अज जितना दुखी है, अज जितना इसका कुबड्डपना जाहिर हो रहा है, इस तो पहले कतई नहीं सी। अज जितना ये बेजार है, इतना पहले कतई नहीं सी। कारण ये जिहड़ी अज की विद्या है, ये जिंदगी चलती जरूर है, जिंदगी बदलती नहीं, जीवन बदलता नहीं।
सिर्फ जीवन चलता है, उपजीविका एक रोज ही है, इस तो इलावा होर कुछ नहीं। साहिबां दी बाणी कहती है, जो प्राणी गोबिंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। हुण मैं हिंदुस्तान विच देखदा लोकी कबीर नूं पढ़ के PhD पे करदे ने, कोई रविदास ते करदा पिया, कोई सूरदास ते कर रहा है, कोई बाबे फरीद ते करदे पे ने, बड़े बड़े डिप्लोमे लेंदे ने, बड़ियां बड़ियां उन्हां नूं सनदां मिलदियां ने, PhD करदे ने। पर हैरानगी दी गल, कबीर ते अनपढ़ सी, रविदास अनपढ़ सी। क्यों कि जिहड़े विद्यालय सन उन्हां दे पढ़ांदे सन ब्राह्मण ऋषि, ते ब्राह्मण शूदर नूं दाखल नहीं करदे सन, शूदर नूं नहीं पढ़ांदे सन। ये सारे शूदर ने, इन्हां नूं कौन पढ़ावे? ये ते अनपढ़ रह गए। लेकिन अज इन्हां नूं पढ़ के लोग PhD करते हैं। बड़ी खोज हो रही है हिंदुस्तान विच, बड़ी कबीर ते, फरीद ते, सदने ते, सैन ते, नामदेव ते, गुरु नानक देव जी महाराज के उत्ते पता नहीं कितने प्रोफैसर, कितने आलमा ने किताबां लिखी ने, कितनी लंबी चौड़ी खोज हुई है गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी ते। पर मैं इतनी अर्ज करदे हां, गुरु नानक किसी विद्यालय च नहीं गए। इतिहासक सबूत मैं थोड़े सामने रखा। पिता कालू जी ने तंग आके गुरु नानक देव जी महाराज नूं बिठा दिता गोपाल पांदे कोल, ते पांदे नूं कह दिता बई तुसी इस बच्चे नूं पढ़ाओ। गोपाल पांदे ने तख्ती दे उत्ते लिखिया ऊड़ा, और ये हुण सबूत मिल गए कि जिसनों तुसी गुरमुखी लिपि कहंदे हो, ये गुरु नानक तो पहले दी है। इसनों गुरु नानक ने नहीं बनाया, ये गुरु नानक तो पहले दी है। किताबां लभियां ने ऐसियां जिहड़ियां 200-300 साल गुरु नानक तो पहले दियां लिखियां हुई। भाषा पंजाबी भाषा विभाग ने वो किताबां लभियां ने, उन्होंने सबूत मुहैया कर दिते ने। जिहड़े भाषा विग्यानी साडे देश विच मौजूद ने, उन्होंने खोज करके साबित किया है कि जिसनों असी गुरमुखी या पंजाबी लिपि कहने हैं, गुरु नानक तो पहले दी सी। इसका एक सबूत तो यह कि गोपाल पांदे ने ऊड़ा लिख के दिता है। वो गुरु नानक नूं ऊड़ा पढ़ाना चाहते, तो मतलब ऊड़ा तो पहले ही सी, क्योंकि जन्म साखी च भी यही लिखे। और कुछ वली नियामत शाह दियां लिखतां मिलियां ने, साईं वजीद खान दियां लिखतां मिलियां ने, कुछ होर सूफी संतां दियां लिखतां मिलियां ने जो इस लिपि विच ने, और ये गुरु नानक तो पहले होए, उन्हां दियां लिखतां मिलियां ने। होर कुछ भगत जनां दियां लिखतां मिलियां ने, किताबां जो गुरु नानक देव जी महाराज तो पहले दियां ने, पर इस लिपि दे विच ने जिसनों अज असी गुरमुखी कहते हैं। इस लिपि नूं गुरु नानक ने अपनाया, इस वास्ते इहदा नाम गुरमुखी पै गया। और कहते ने जिस वक्त ऊड़ा लिखिया है गोपाल पांदे ने, साहिब कहते ने इस ऊड़े दे अर्थ कर, मैंने दस। पांदा सी आखिर उस्ताद सी, उन्होंने गुस्सा चढ़िया, कहने लगा नानक जी एक अखर दे कोई अर्थ नहीं आते, 2-3 अखर कट्ठे जुड़न पूरा शब्द बने, पूरा अल्फाज बने ते अर्थ आउंदे ने, वरना कोई अर्थ नहीं। साहिब कहने लगे पांदा जी ये ऊड़ा बेमैनी है? हाँ बेमैनी है। तो छड़ के तख्ती खड़े हो गए, कहने लगे पांदा जी फिर बेमैनी अखर मैं नहीं पढ़ने, मैं इस जगत दे बेमैनी अखर पढ़ने वास्ते नहीं आया। तो कुदरती गल है, उस्ताद है, रोज उसका बच्चियां नाल पाला पैंदा सी, औखा होया। कहंदा नानक जी गल सुनो, एक अखर का कोई मैना नहीं आता, एक अखर दे कोई अर्थ नहीं आते। साहिब कहने लगे पांदा जी होंदे ने, एक अखर दे भी अर्थ होंदे ने, अगर अर्थां दा पता होवे, अर्थां दी जांच होवे, अर्थां दी समझ होवे, तां एक अखर दे भी अर्थ ने। तो पांदा हैरान, कहने लगे अच्छा फिर की अर्थ है ऊड़े का? तो गुरु नानक देव जी महाराज ने उत्थे आप पट्टी लिखी, और जिहड़ी पट्टी लिखी गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्ज है आशा राग दे। उस बाणी का सिरलेख भी है, आशा मल्ला पहला पट्टी लिखी, महाराज ने पहले पट्टी लिखी, तख्ती लिखी। उत्थे ऊड़ा की कहता है, ससा की कहता है, कक्का की कहता है, इन्हां तो की प्रेरणा लैनी, इन्हां अखरां तो की सिद्धांतिक नुकते लैने, ससे सोए
श्रेष्ठ जन साजी सबना कारण एक बन। की इन्हां अखरां तो प्रेरणा लैनी है, वो साहब बोली जांदे। इस तख्ती नूं पढ़ के गोपाल पांदे ने गुरु नानक दे कदमां ते मत्था टेके। पिता कालू नूं साफ कह दिता बई इनू मैं नहीं पढ़ा सकता, बल्कि मैं इस दे कोलों ओ विद्या पढ़ लई है जिस विद्या नूं पढ़न तो बाद किसी होर विद्या की लोड़ नहीं। इस दे अंदर आत्म अनुभव है, इस दे अंदर आत्म प्रकाश है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच कुछ बाणियां ऐसियां ने जो अखरां दीयां महानता दसदियां ने। 52 अखरी श्री कबीर जी, 52 अखरी महला पंजवां गुरु अर्जन देव जी, फिर पट्टी लिखी गुरु नानक देव जी महाराज। अखरां दी महानता, एक एक अखर की कहते हैं, अखरां तो की प्रेरणा लैनी है, क्योंकि सारा ज्ञान ध्यान है ते अखरां विच। अखरी नाम अखरी सला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग वखाण। जितना ज्ञान ध्यान, जितनी शिक्षा दीक्षा है, सब अखरां दे विच है। मनुख दी दुनिया दे चों अखर हटा दो ते बंदे ते पशु च की फर्क है? कुछ भी नहीं। अखरां करके बंदे ने तरक्की की है, अखरां करके मनुख का विकास होया है, अखरां करके ज्ञान ध्यान का जन्म होया है, अखरां करके कला का संगीत का जन्म होया है। सारा ज्ञान ध्यान अखरां दे उत्ते खड़ा है। भगत कबीर भी कहते हैं अखर अंदर त्रिभुवन धार है। तीन लोगों का जिहड़ा ज्ञान है अखरां दे विच, ते साहिब कहण लगे जिन्हां अखरां दे विच तीन लोगों का ज्ञान है, मनुखी दुनिया की सारी हलचल अखरां ते खड़ी है, ते तू कहना अखर बेमैने नहीं। एक एक अखर दे बहुत कुछ पिया है। अगर प्रेरणा लैण की जांच होवे, शिक्षा लैण की जांच होवे, तो मैं अर्ज कर दिया जिसनों स्कूली विद्या कहते हैं गुरु नानक ने नहीं लई। आत्म अनुभव है, अनुभव प्रकाश है। जिसनों स्कूली विद्या कहते हैं कबीर कोल नहीं है। कबीर भी कहता है विद्या नहीं पढ़ो, बात नहीं जानो, हर गुण कथत सुनत बहुरानो। तो मैं अर्ज करा धर्म किसी इलम ते नहीं खड़ा, धर्म खड़ा है साधना ते। इलम का मतलब है कुछ जान लेना, साधना का मतलब है अपने आप को बदलना। मैं जैसा हाँ वैसा गुरु को कबूल नहीं हो सकांगा, मैं जैसा हाँ वैसा परमात्मा को कबूल नहीं हो सकांगा, बदलना है। तो यकीन जानो कुछ जानना, कुछ इल्म हासिल कर लेना बड़ी सौखी गल है, बदलना बड़ी औखी गल है। तुसी कथा सुन ले की औखियाई है, दो चार किताबां पढ़ लो, अखरां दे अर्थ पढ़ लो गुरु ग्रंथ साहब दे, की औखियाई है? कोई औखियाई नहीं। इल्म है जान ले, लेकिन हुण अपने आप को बदलना है, ये बड़ी औखी गल है, बहुत औखी है। इस वास्ते मैं अर्ज करदा धर्म कोई इल्म ते नहीं खड़ा, इस चक्कर च ना पैना। 100 किताबां बनदा पढ़ ल, पढ़िए जेते बरस भर, पढ़िए जेते मास, बहुता ही बंदा पढ़ लवे उहदे नाल की होना है। पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दरसे, लोहा कंचन रिंड होए कैसे, जो पारस ने परसे। बल्कि साहिब ते उस पढ़े लिखे नूं मूर्ख कहंदे ने। किहड़े पढ़े लिखे नूं? पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। जिथे हंकार है, लोभ है, वासना है, साहिब कहंदे कौन कहंदा पढ़ा लिखा है? तो मूर्ख है, महा को बड्ड है, इनू कख भी नहीं पता। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार, जिदे अंदर अहंकार है बड़ा भारी। मैनू इस दुनिया च बड़े इस तरह के बंदे मिले हंकारी, जिहड़े कहंदे रहे ज्ञानी जी असी ना होईए तो पता नहीं किवें कौम चलेगी, असी ना होईए तो स्कूल किस तरह चलेगा, असी ना होईए तो लंगर किस तरह चलेगा, असी ना होईए तो गुरुद्वारा किस तरह चलेगा। इस तरह के बंदे मैनू समुची दुनिया च मिले। और जद भी कोई कहता है ज्ञानी जी असी नहीं होवांगे तो किस तरह चलेगा गुरुद्वारा, असी ना होईए तो लंगर किस तरह चलेगा, स्कूल किस तरह चलणगे, तो मैं उन्होंने कहना हुन्ना तू मर के वेख सब कुछ होंदा रहेगा। एवें तेनों भुलेखा है, एवें तेनों निकम्मा भुलेखा है। इत्थे तेरे वर्गे कई आए ते चले गए, जमीन ते आसमान। लोग तृष्णा है, वासना है। तो साहिब कहते ने ये जिहड़ा हंकार है, ये जिहड़ा लोभ है, ये जिहड़ी वासना है, ये जिहड़ा हंकार है, ये ते मूर्खता की निशानी है, पढ़े लिखे की निशानी थोड़ी है। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। तो धर्म किसी इलम ते नहीं खड़ा, साधना ते खड़ा है। साधना का मतलब है बदलना है, तब्दील करना है,
अपने आप को बदलना है। कैसा बदलना है? ਜਿਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਾਂ मैं वैसा अपने आप को बनाना है। जैसा अकाल पुरख मैनू प्रवान कर सके मैं वैसा बनना है। इतनी गल तो स्पष्ट है। गुरु नू कैसा चाहिए गुरु ने व्याख्या की है। तो सब तो प्रथम उस मार्ग ते चलण वास्ते गुरु नानक देव जी कहते ने मनुख दा धर्मखंडी बनना बड़ा लाजमी। धर्मखंडी तो धर्मखंड की व्याख्या की साहब कहते राति रुति थिति वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। बई ये रातां ये रुत्तां ये थित ये वार ये सूरज ये चंद ये तारे सब मर्यादा दे चल रहे, नियम दे चल रहे, धर्म दे चल रहे, असूल दे चल रहे हैं। ते तू भी मर्यादा दे चल। ते मर्यादा दे चलना की हुंदा है? बई तेरा बोलना मर्यादा दे च होवे, तेरा वेखना मर्यादा दे च होवे, उठना बैठना सोना जागना मर्यादा च होवे, खाना पीना मर्यादा दे च होवे, पहनना मर्यादा दे च होवे। कभी बगौर मुताला करके वेखना मनुख की जिंदगी दे च मर्यादा नहीं रही। ना बोलण दी मर्यादा, ना पहनण दी मर्यादा, ना खाण दी मर्यादा, ना पीण की मर्यादा, ना सौण की मर्यादा, ना जागण की मर्यादा। मर्यादा तो मनुख की जिंदगी च रही नहीं, असूल तो कुछ रहा ही नहीं। और साहब तो कहते हैं जो धर्मखंडी है ना उहदा हसना रोना भी मर्यादा च होवेगा। रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह ना ही किसे केरी बाज सच्चे ना। हसना ते रोना भी मर्यादा च होवे। धर्मखंडी बंदे की यह पहचान है। वो हसेगा उहदा हासा भी मर्यादा च, वो रोवेगा उहदा रोना भी मर्यादा च। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी च इसका बड़ा लंबा चौड़ा खुलासा मौजूद है। असी जद हसांगे दूजे की कमजोरी देख के, फ्राइड ने भी ऐसा किया है कि मनुख उदों ही हसदा है जब अपने नालों किसी को हीणा वेखदा है, कमजोर वेखदा। किसी को कोई दाग लग गया, किसी को कोई कलंक लग गया, किसी को कोई नुकसान हो गया, किसी की कोई बेइज्जती हो गई है तो उन्होंने वेख के बंदा हस पैंदा है, हसदा है दूजियां की कमजोरी है। चलदा चलदा अगला गिर गया, कोई बेइज्जती हो गई है, कोई कलंक लग गया, मनुख खिड़खिड़ा के हस पैंदा। ते मजाक भी जिहड़ी है ना, बंदा जब मजाक दे च हसदा है तो हासा तो उदों ही पैदा होगा जब दूजियां नूं कमजोर साबित करोगे, वरना नहीं हो सकता। हसोगे किस तरह? इस वास्ते पंजाब दे कहंदे फलाना मेरे ते हसदा है, मेरे ते हसदा है, नहीं बर्दाश्त करते भी फलाना मेरे ते हसदा है। तो फलाना मेरे ते हसदा है भाव की है कि फलाना मैनू कमजोर समझता है, फलाना मैनू नीच दिखाना चाहता है, फलाना जिहड़ा मैथों वड्डा होने की कोशिश पे करदा मेरे ते हसदा है। भी हसना प्रवान क्यों नहीं? क्योंकि हासे च वो चोट करदा पिया है। कईयां दा हासा एक चोट है, चोट पहुंचाना है। ऐसा नहीं कोई पत्थर नाल चोट पहुंचाई दी है, गोली ते तलवार नाल चोट पहुंचाई दी है, हस के भी कई चोट पहुंचाते हैं। कईयां दे हासे तो बड़ी चोट पहुंचती है, कईयां दे हासे तो दिल नूं बहुत जो है जख्म पहुंचते हैं, दिल टुट जाता है। अगला हसे है पर जिस ते हसिया जा रहा वह बेचारा रो पैंदा, लै भई मेरे ते हसिया है। पुरखा तेरे हासे ने जे अगलियां दी अखां दे च हंझू कढ़ दिते ने ते ये हासा ते पत्थर नालों भी भैड़ा है। इस हासे ने इतनी चोट पहुंचाई। रंग हसे, भगत भी हसदा है किसी रंग च, किहड़े रंग च? भगत की ज्यों सुरत अंतरमुखी होंदी है ना, उन्होंने अपनियां कमजोरियां दिसदियां ने, अपनियां कुछ खामियां दिसदियां ने, कुछ कमजोरियां दिसदियां ने, हस पैंदा है। साहिब गुरु रामदास जी महाराज की पंक्ति बड़ी सुंदर कानड़े राग के अंदर साहिब कहते ने हर जन गुण गावत हसया। हरि दा जन गुण गांदियां गांदियां हस पिया। बई क्यों? सुरत जो अंतरमुखी होई तो सब तो पहले जन्मां जन्मांतरां दे जिहड़े अंदर संस्कार पैना कमजोरियां उन्हां दे दर्शन होंदे ने। कदी नाम तुसीं जपण लगो ना, पहली दफा जपण लगोगे, अभ्यास करोगे, अपनियां कमजोरियां दा पता चलेगा। तो जिन्हों अपनियां कमजोरियां दा नहीं पता चलता पिया, जे अभ्यासी है भी नहीं, कोई नाम नहीं जप रहे, कोई दरबी नहीं। जिन्हों दूजियां दी कमजोरियां दिसदियां पिन, अपनियां नहीं, तो संसारी बंदियां दी बिरती है। थोड़ा जिहा मैं देखदा लोग नितनेम करन लग पैन, पाठ करन लग पैन,
फिर जगत में बुरा आखण लग पैंदे, ऐ भैड़ा है, ऐ भैड़ा है, ऐ भैड़ा है। इस तो पता चलता कोई रस नहीं होता, अंतर्मुखी बिरती नहीं हुई। क्योंकि अंतर्मुखी जब बिरती आती है तो अपनियां कमजोरियां का पता चलता है, तो ज्यों कमजोरियां का पता चलता है भगत अपने उत्ते आप हस पैंदा है। बस इन्नी गल है। हर जन गुण गावत हसिया, वो अपने उत्ते आप हसदा है। बाबा फरीद कहते हैं, काले मैडे कपड़े काला मैडा वेश, गुण ही भरिया मैं फिरा लोक कहन दरवेश। मैं गुनाहां नाल भरिया, लोकी मैनू दरवेश कही जाते हैं, संत कही जाते हैं, फकीर कही जाते हैं। तो फरीद हस पैंदा बई मैं कुछ होर हाँ, लोकी कुछ होर समझते। नाम जपदियां जपदियां पहलियां अपनी कमजोरियां का ही पता चलता है, तो उन्होंने वेख के कई दफा मनुख हैरान भी हो जाता है, और कई दफा मनुख वास्ते नाम जपना औखा भी हो जाता है। अगे पिछे बंदा चंगा बैठा होंदा है, तो तुसी सुंदर गुटका लैके जपजी साहब का पाठ करन लगो, दुनिया भर के ख्याल आउंदे आमदन कभी करके देखना। अगे पिछे तुसी चंगे बैठे होवोगे तो वाहिगुरू वाहिगुरू का जाप करो, ਉਹਦੇ ਚ ध्यान जोड़ो, दुनिया भर के ख्याल आउणगे ਜਿਹੜੇ पहले नहीं सन। पता है ऐसा क्यों? थोड़ा जिहा मन इकागर होंदा है ना, कि अंदर पए हुए बहुत जिहड़े संस्कार ने वो सामने आ जाते। अगे पिछे तो मन खिंडिया रहिंदा, अंतरमुखी होंदा नहीं, तो थोड़ा जिहा अंतरमुखी होंदा है तो सब कुछ का पता चलता है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं एक उदाहरण देना हुंदा, क्योंकि अक्सर लोग पुछ बैठते हैं भाई नाम जपते हैं तो ये अंदर ऐसे ख्याल जिहड़े पहले कभी नहीं पैदा होए हुंदे, उदों क्यों पैदा होंदे? तो मैं एक ऐसा उदाहरण देवां, ठीक है पिछोकड़ नाल संबंध रखता है। पंजाब दे किसान जानते हैं, जब कणक बीजते हैं ना, तो फिर की देखते हैं, बीजी कणक है पर नाल बथुआ भी पैदा हो गया, घास भी पैदा हो गया। हुण किसान सोची पै जांदा, बीजी तो मैं कणक है, बथुआ तो मैं बीजिया नहीं, घास तो मैं बीजी नहीं, ये कित्थों जम पई, ये क्यों जम पई है, ये मेरे खेत च क्यों पैदा हो गई? मैं तो सिर्फ कणक बीजी, बथुआ बीजिया नहीं। पर ठीक है, कणक तू अज बीजी है, बथुए दे बीज ते पहले दे पै ने, घास दे बीज ते पहले दे पै ने। पुरखा नाम तू अज जपन लगा है, ते दुनिया भर दे अनर्थ बड़े विचार ते पहले दे ही पै ने, कई जन्मां दे पै। जो बंदा नाम जपन लगता है, वो अंदरों बथुआ भी पैदा हो जाता है, घास भी पैदा हो जाती, वो तरह तरह के ख्याल भी पैदा होते हैं। कई बंदे तो इत्थे ही छड्ड देंदे ने, भाई की जपना, छड्डो। इस वास्ते मैं कहना कि बिखड़ी घाटी हर बंदे का काम नहीं। इत्थे तिथे जोध महाबल सूर ते सूरमे चाहिए ने, बड़े मेहनतवान बंदे चाहिए, बड़े हिम्मती बंदे चाहिए ने, जो अपनी जिंदगी नूं कोई तरतीब दे सकन। उन्हां दा हासा भी मर्यादा दे च होवे, किसी नूं चोट पहुंचाउण वाला ना हो। उन्हां दा रोना भी किसी मर्यादा दे च होवे। तुसी आखो भगत रोंदे भी ने, रोंदे ने। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान, हो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जी। कोई पुत्र दे विछोड़े च रोंदा है, कोई धन दे विछोड़े च रोंदा है, कोई इज्जत दे विछोड़े च रोंदा है, कोई परिवार दे विछोड़े च रोंदा है, कोई मित्रां दे विछोड़े च रोंदा है, पर कोई रब दे विछोड़े च रोंदा है। ते विछोड़ा रोने नूं जरूर जन्म देवेगा, चाहे रब दा विछोड़ा है, चाहे गुरु दा विछोड़ा है, चाहे परिवार दा विछोड़ा है, चाहे मित्रां दा विछोड़ा है। विछोड़े का मतलब उसने अश्कबार कर देना है, तो जिहड़ा विछोड़े नूं महसूस करदा वो जज्बाती श्रद्धालु जरूर होगा। सारे संबंध जज्बियां करके ने, अंदर जज्बा ना होवे परिवार नाल संबंध नहीं जुड़नगे। सारे संबंध जज्बियां ते खड़े ने। कभी बगौर मुताला करो, जज्बात तो हीना जिहड़ा मनुख है, ना परिवार नाल जोड़ सकेगा, ना करतार नाल जोड़ सकेगा। जज्बियां करके ते गल बनदी, जज्बियां नाल ही ते संबंध जुड़दा है। मित्रां दा संबंध है, प्यो पुत्र दा संबंध है, किस ते खड़ा है? जज्बियां ते खड़ा है। अंदरों जज्बे ठंडे पै जाण, कौन प्यो है, कौन पुत्र होंदा है, गल खत्म। कौन भरा होंदा है, कौन बहन होंदी है, कोई भी नहीं। कौन मित्र होंदे ने, हुणे ही संबंध टुट जाणगे। ये सारे संबंध जज्बियां ते खड़े ने, जज्बात ते खड़े ने। ते जज्बात बिल्कुल ठंडे पै जाण, कौन गुरु होंदा है, कौन रब होंदा है, गल खत्म। संबंध सारे जज्बियां ते खड़े ने, जज्बात ते खड़े ने। तो जिस वक्त मनुख संबंध टुटदे वेखदा है, विछोड़ा होंदा है पुत्र दा, मित्र दा, परिवार दा, संसार दा,
ਮਨੁੱਖ ਰੋ ਪੈਂਦਾ, ਭਗਤ ਵੀ ਰੋਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਬਾਈ ਹੈ ਦੀਵਾਨੇ ਗੋਇਆ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਕਦੀ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਜੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਹਾਸਾ, ਉਹ ਖੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਰੋਣੇ ਵੀ ਖੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਸ਼ਕ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੇ ਉਮੀਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਗਿਜ਼ ਸਮਰ ਨਾ ਗੀਰਦ। ਸਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਮੀਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਆਸਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ਼ਾਹੇ ਉਮੀਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਗਿਜ਼ ਸਮਰ ਨਾ ਗੀਰਦ, ਅਜ਼ ਆਬ ਅਸ਼ਕੇ ਮੈਂ ਜਗਾਂ ਤਾ ਸਬਜ਼ ਤਰਨਾ ਬਾਸ਼ਦ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਲ ਇਸ ਆਸਾ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਫਲ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੰਝੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ, ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾਂਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇਤਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਗਤ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾਂਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੇ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ, ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਥੋਂ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਥੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟੇਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਮਦ, ਨੇੜੇ ਉਸਦੀ ਝੁੱਗੀ ਸੀ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜ ਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਨੰਗਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇਸ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਇੱਥੇ ਸਰਮਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਖਾਧਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ, ਔਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੰਦ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਦ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਵਕਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ
और बड़ा गुस्से च खड़ा है। सरमद नूं वेख के औरंगजेब कहन लगा, दरे दरवेश रां दरबां ना बाया। दरवेशां दे बूए ते कुत्ता नहीं चाहिए, तू क्यों रखे? तू फकीर हो के कुत्ता क्यों रखे? तेनू की लोड़ पैगी? तू एक फकीर झुग्गी च रहना, तेरे तन ते कपड़े भी कोई नहीं, तू कुत्ता क्यों रखे? दरे दरवेश रां दरबां ना बाया। गुस्से च जद आखिया ते सरमद भी अगों बोल पिया, कहन लगा, बबायद ता सगे दुनिया ना आयद। फकीरां दे बूए ते भी कुत्ता चाहिए ताकि तेरे वर्गे कुत्ते ना आउण। ये तेरे वर्गे कुत्तियां नूं रोकण वास्ते मैं कुत्ता पाल के रखे। बेपरवाह सदा रंग हर के जांको पाक स्वामी। जिन्हां ने इतिहास का मुताला किया उन्होंने पता है कि सवेरे सूरज चढ़न तो पहले सरमद नूं औरंगजेब ने कतल कर दिता सी। उहदी कबर बनी हुई है जामा मस्जिद दे कोल। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हिंदुस्तान का पहला शिक्षा मंत्री, उन्हें एक किताब लिखी है उर्दू दे और वो किताब है औरंगजेब के संबंध अब्दुल कलाम आजाद की। वो कहता है औरंगजेब दे हो सकता है गुनाह खुदा सारे ही माफ कर देवे, पर यह जिहड़ा गुनाह किया उसने कि सरमद जैसे फकीर नूं उसने जिहड़ा कतल किया है, ये गुनाह नाकाबले माफ है। इतनी गल कह गए। दो लफ्ज होर भी अगे कह सकता सी, पर इत्थों जापदा है उहदे मजहब ने, उहदी तंग दिली ने उहनूं कहण नहीं दिता। हो सकता है खुदा औरंगजेब दे सारे गुनाह माफ कर देवे, पर त्याग ते वैराग दी मूर्ति गुरु तेग बहादुर साहब नूं चांदनी चौक दे शहीद करना, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडलियां नूं शहीद करना, यह गुनाह नाकाबले माफ है। इत्थे तक तो नहीं पहुंचया अब्दुल कलाम आजाद, लेकिन सरमद तक जरूर पहुंचे। भाई एक सरमद निर्वैर बंदा सी, बेपरवाह बंदा सी, क्यों मारिया इसने, क्यों कतल किया? तो मैं इस तरह बेपरवाह सदा रंग हरखे जांको पाक स्वामी। बेपरवाह रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह ना ही किसे केरी बाज सच्चे ना। हसना ते रोना एक मर्यादा छो जाएगा। रोवेगा खुदा दे विछोड़े च, गुरु दे विछोड़े च। हसेगा अपनियां कमजोरियां ते, जिउं अपनियां कमजोरियां नूं वेखेगा हसेगा। जगत हसदा है दूजियां दी कमजोरियां ते। किधरे भी ठट्ठा मजाक हो रहा होवे ना, मजाक का मतलब की है दूजे ते चोट, ते दूजे ते चोट उदों ही पहुंचा सकते हैं जब दूजे नूं कमजोर साबित करिए, उन ते चोट नहीं ना पहुंचा सकते। भगत अपना मजाक आप करता है, अपने उत्ते आप हस पैंदा है और रोंदा भी है। रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह ना ही किसे केरी बाज सच्चे ना है। धर्म खंडी मनुख दी ए पहचान है, ओदा खाना पीना उठना बैठना सोना जागना, हता के हसना रोना सब कुछ मर्यादा च हो जाएगा। बेमर्यादा नहीं, ऐसा पहनना नहीं होगा जिन्हों बेमर्यादा आख्या जाए, ऐसा बोलना नहीं होगा जिन्हों बेमर्यादा आख्या जाए, ऐसा तकना भी नहीं होगा जिन्हों बेमर्यादा आख्या जाए। इसकी बड़ी गहरी खोज की है हिंदुस्तान के संतां ने, महापुरुषों ने। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या मौजूद है। किसी वक्त अर्ज करा, अहम मेरा हथ गंदा होवे तो मैं किसी के जिसम से रख दें, अगले के कपड़े तो गंदे हो गए। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी कहती जिस बंदे दी नजरां गंदियां ने, जिस बंदे की निगाह गंदी है, जिस बंदे दी अखां गंदियां ने, जितनी दूर तक वेखेगा माहौल गंदा करेगा, वातावरण गंदा करेगा। अख की पहुंच बहुत दूर तक है, हाथ की पहुंच दूर तक नहीं। हाथ कितनी दूर तक जाएगा? बिल्कुल नेड़े तक, पर अख की पहुंच बहुत दूर तक है। अख गंदी है, अख मैली है, बहुत दूर तक मैल जाएगी, बहुत दूर तक। भगत का तकना मर्यादा विच है, भगत का बोलना मर्यादा विच है, भगत का सुनना मर्यादा विच है, भगत का पहनना मर्यादा विच है। भगत उतना ही खांदा जितनी भुख है, भगत उतना ही सौंदा जितनी लोड़ है, और भगत उही काम करता जो जीवन की लोड़ है। ऐसे पुरुष नूं कहंदे ने धर्मखंडी। और वो नाम जप रहे थे, नाम जपण का ढंग गुरु नानक देव जी महाराज दसते ने, धुन में ध्यान
ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। गल मैं फिर दोहरा दिया, धुन में ध्यान, वाहिगुरु वाहिगुरु की धुन करनी, ये ध्यान जोड़ना। तो ये तो हम अनपढ़ भी कर सकता है, ये वास्ते कोई साध जो है कोई लंबी चौड़ी इलम की थोड़ी लोड़ है, साधना है। पर मैं अर्ज करा 1 मिनट भी नहीं कर सकोगे, करके वेखना तुम 1 मिनट भी नहीं कर सकोगे। 1 मिनट करना भी औखा है, कारण कलिया जाना पैंदा है। सुरत अंदर कले जाएगी, अंधेरा है, अंदरों आवाज करनी, वो ध्यान जोड़ना तो अंधेरा है। पहले कभी कीता नहीं और अनजान रस्ता है, पहले कभी चले नहीं, कि रस्ता भी पहाड़ी, एक अवघट घाटी राम की, वाहिगुरु वाहिगुरु की धुन अलापनी। हुण इहदे च ध्यान जोड़ना गल बड़ी औखी। तो कईयां ने एक सौखे रस्ते लभ लेना। तो मैं अर्ज करा जिहड़ा सौखा रस्ता है वह रब तक कोई नहीं जाता। घूम फिर के मेरे उत्ते कई बंदियां ने इस ढंग के सवाल किए ने, कोई सौखा तरीका नहीं है नाम जपण का। तो मैं कोई अर्ज कर देना हुंदा कि सौखे तरीके नाल धन जरूर कमाया जा सकता है, धन की लाटरी भी निकल आउंदी है, सौखे तरीके नाल धर्म नहीं कमाया जा सकता। आखण औखा साचा ना, ये बहुत औखा है। एक अवघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। सौखे रस्ते कई दस देंदे ने, बई लै ए तस्वीर ले लो, सामने रख लो, ये ध्यान जोड़ो। केड़ी औखी गल है, सामने तस्वीर रखी वो ध्यान जोड़ो, केड़ी औखी गल है, कोई औखी गल नहीं। ध्यान तो बाहर चला गया ना, तो जिहड़ा बाहर चला गया, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का फैसला, बाहर टोले सो भरम बुलाई। अपने तो बाहर जिहड़ा लभदा पिया भरम विच पिया, क्योंकि उसनूं लभना है अपने विचों। वसी रब हियाली है जंगल क्या ढूंढे, उन्होंने तो अपने अंदरों लभना है, बाहर टोले सो भरम बुलाए। वो जो अंदरों लभना है तो फिर कोई साधन भी अंदरों चाहिए, तो आवाज अंदरों कढ़नी है, वाहिगुरु वाहिगुरु की, ये ध्यान जोड़ना है। पर ध्यान जोड़न लगे इतना ख्याल रखना है कि जीवन मर्यादा दे होवे। जिन्हों कहते ने इस्लामी पुरुष शरा, जिन्हों मोहम्मद साहब ने कह दिता है, खुदा तक कोई पहुंचेगा, हकीकत तक कोई पहुंचेगा जिहड़ा पहला शरीयत दे चावे, शरा दे चावे। सनातनी ऋषि मुनिया ने कह दिता है, ज्ञान तक ईश्वर तक वही पहुंचेगा जिहड़ा पहले कर्म कांड दे चावे। तो बड़ा लंबा चौड़ा कर्म कांड है, मनु महाराज ने लिखे है, मनु स्मृति मौजूद है, हिंदू धर्म का विधान। तो वो जिहड़ा विधान है, वो जिहड़ा धर्म खंड की व्याख्या है, वो मनु स्मृति दी सारी मौजूद है। साडे रहतनामे ने, जिस तरह मनु स्मृति है, इस्लाम दे हदीसां ने, साडे च रहतनामे। रहतनामे की ने? समुची देही दी साजना, शरीर दी, क्योंकि पहले शरीर है, फिर मन है, फिर आत्मा है। तो कम से कम पहले जिस मनुख का शरीर ते ही कंट्रोल नहीं उसका कि मन ते खाक होगा। मन ते गल बाद सूक्ष्म है ना, इस दे उत्ते काबू पाना ते गल औखी है। पहले कम से कम तू शरीर ते काबू पा, तू शरीर नूं ते संयम विच रख, तू शरीर नूं ते ऐसा बना जो गुरु नूं प्रवान होवे, गुरु नूं कबूल होवे। फिर तू मन नूं ऐसा बना जो गुरु नूं कबूल होवे। फिर तू आत्मा नूं ऐसा बना कि परमात्मा नूं कबूल होवे। गल ते इस तरह दी। हुण तू शरीर ऐसा बनावे गुरु नूं प्रवान नहीं, ते मन ते दूजे नंबर ते, आत्मा ते तीजे नंबर ते, वो ते होर बिखड़ी है, वो ते होर उचाइयां ने, वो ते होर बहुत अगे दी गल है। तो मैं इस तरह इसका निर्णय करता हूं धर्मखंड का। धर्मखंड चूंकि सारी गल महाराज ने कह दी है तरतीब की, मर्यादा की, तो मर्यादा पहले देनी है शरीर को, नाम जपना है और मर्यादा देनी है शरीर को। और एक बंदा नाम जपे, खाना पीना संयम दे च नहीं, पहनना संयम दे च नहीं, बोलना संयम दे च नहीं, उठना बैठना संयम दे च नहीं, ओदा नाम जपया किसी काम नहीं, कोई लेखे नहीं। ਉਹਦੇ बारे साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते जोवें कूप संचन को बसुदा उठ बैल गए चर बेल। बड़ा पुराना उदाहरण दिता है गुरु अर्जन देव जी ने अपने वक्त का। बेल ते बैल, बेल कहते वल्लां जिहदे नाल खरबूजे लगदे ने, इंदवाणे लगदे ने, होर कई साग सब्जियां लगदियां बेलां दे नाल, वल्लां दे नाल। उठ बैल गए चर बेल जोवें कूप सन चन को बसदा। पातशाह कहने ने कि एक किसान ने हलट दे नाल बैल जोड़े ते बैल चलदा पिया, पानी निकल रहा है और खेती नूं पानी दिता जा रहा है। शाम दे वक्त किसान आप भी थक गया, बैल भी थक गया,
ਤੇ ਹਲਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਫਲ ਨਿਕਲਣੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅਜੇ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੇਲਾਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਉੱਠ ਬੈਲ ਗਏ ਚਰ ਬੇਲ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਲ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਨ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਤਮ। ਉੱਠ ਬੈਲ ਗਏ ਚਰ ਬੇਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਕਰਦਾ, ਬੇਲਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਲ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਮਰਿਆਦਾ। ਤੋ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਛ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਸੰਜਮ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਖਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਈ ਰਾਮ ਨੇ, ਕਈ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਨੇ, ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਕਈ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਕਈ ਗੋਰਖ ਜੈਸੇ ਨਾਥ ਨੇ, ਕਈ ਦੇਵੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡੀ ਮਨੁੱਖ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੇ ਕੀਟ ਕੋਟੇ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ, ਹੁਣ ਕੀਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਰੱਖਾਂ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ। ਜਿਉਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਸੂਰ ਜਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕੋਟ ਮਹਾਦੇਵ ਅਰ ਕਵਿਲਾਸ, ਦੁਰਗਾ ਕੋਟ ਜਾਂ ਕੇ ਮਰਦਨ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਟ ਵੇਦ ਉਚਰੇ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਪਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ 17 ਦਫਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਦਫਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਦਫਾ ਇਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਤੇ ਪਾਗਲ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇ, ਭਗਤ ਤੇ ਪਾਗਲ ਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ। ਕਾਰਨ ਪਾਗਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ? ਤੇ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ? ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਕਈ ਭਗਤ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂ ਇਸਰਾਰ ਤਾਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਨ ਤਕਰਾਰ ਤਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਬੁੱਲੇ ਯਾਰ ਥਾਈ, ਤੇ ਗੁਪਤੀ ਬਾਤ ਸੁਗਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗੱਲ ਲੰਘਣੀ ਹੈ।
इन्हां दे समझ विच नहीं आउंदी। तो भगत कबीर जी महाराज जिस वक्त ज्ञान खंड दे पहुंचे तो पता की कहंदे ने, सूरज एक नहीं करोड़ां ने। ते ऐ हिंदुओ किहड़े सूरज नूं पानी देंदे हो, किहड़े सूरज नूं देवता कही जांदे? कोट सूर जां के प्रकाश, एक सूरज नहीं करोड़ां ने। अज विज्ञान ने कह दिता है, अज तो 600 साल पहले कबीर कहंदा सी, कोट सूर जाके प्रगास, कोट महादेव अर कविलास। कबीर कहते करोड़ा शिव जी ने ते करोड़ा विष्णु ने। कैलाश पर्वत ते रहने वाले विष्णु ते शिव जी करोड़ा ने, एक नहीं। किहड़े शिव जी की पूजा करते, किहड़े विष्णु नूं मनदे? दुर्गा कोट जाके मर्दन करें, ब्रह्मा कोट वेद उचरें। करोड़ा दुर्गा देवियां ने, किहड़ी दुर्गा देवी नूं मनदे हो? सिर्फ कबीर का शब्द पढ़ के मैं थोड़े सामने रखदा पिया, अपनी तरफों कुछ नहीं कहता। कबीर जिस वक्त पहुंचे ज्ञान खंड विच, कहंदा दुर्गा तो मैं करोड़ा वेखियां ने, किहड़ी दुर्गा की पूजा करनी, किस दुर्गा नूं मत्था टेकदे ते किहड़े ब्रह्मे नूं मनदे? मैं ते ब्रह्मे भी करोड़ा वेखे ने, करोड़ा तरह के वेदां की रचना पे करदे ने। वेद का मतलब है ज्ञान, करोड़ा तरह के ज्ञान दीयां गल्लां पे करदे ने। कोट चंद्रमे करें चराक, सुरतें 30 उजेवें पाक। भगत कबीर कहंदे चंद्रमा, क्योंकि मुसलमान चंद नूं वेख के ईद मनांदा। किसे थां सूरज प्रधान है, किसे थां चंद्रमा प्रधान है। समुचा मजहब कोई चंद्रमा नाल जुड़िया होया, कोई सूरज नाल। पुराना जिहड़ा बंदे कोल दिन दिहाड़ा समझण दा जिहड़ा ढंग सी ना, वार त्योहार गिणती कैलेंडर, ये चंद्रमा ही सी। जिस दिन चंद्रमा पूरा हो जाए ना, तो कहते सन पूरन माश, माश कहते हैं महीने नूं, माशी महीना, पूरन माश, अज महीना पूरा हो गया। भाई किस तरह चंद्रमा पूरा हो गया? ये बंदे कोल जरिया सी समझण दा, और कोई ढंग नहीं सी। पूरन माशी के आखिरी अर्थ ही बनते हैं, और कुछ नहीं। पूरन माश महीना पूरा हो गया, पूरन माशी महीना मुकम्मल हो गया, महीना संपूर्ण हो गया। बाद विच बंदे नूं समझ पई कि संसार की हलचल का केंद्र चंद्रमा नहीं है, सूरज है। सूरज एक रास नूं छड़ के जो दूसरी रास दे प्रवेश करता है, रुतुआं बदलदियां ने, थित्तां बदलदियां ने, ते जिस दिन दूजी रास दे प्रवेश करता है, कुछ ना कुछ हलचल आउंदी है। उस दिहाड़े नूं कहंदे ने सांक्रांत। सांक्रांत का मतलब जिहदे राहीं क्रांति घटित होंदी है, तब्दीली आउंदी। क्रांत कहंदे ने जो है पलटे नूं, तब्दीली नूं। सांक्रांत शब्द है जिन्हों असीं पंजाबी रूप संग्रांत कहंदे। सांक्रांति अज भी शब्द वरते ने हिंदुस्तान के। सांक्रांति जिहदे राहीं क्रांति घटित होंदी है, जिहदे राहीं तब्दीली आउंदी है, ते तब्दीली सूरज नाल है। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। अणगिणत वेश जिहड़ी प्रकृति धारण करदी है सूरज करके। बंदे नूं पता चलिया कि ब्रह्मंड की हलचल दा केंद्र सूरज है, चंद्रमा नहीं। लोकी फिर सूरज नाल जुड़े। फिर बाद विच पता चलिया इस सूरज के पिछे कोई होर सूरज है, ओदे पिछे कोई होर है, ओदे पिछे कुछ होर है। इस वास्ते ईश्वरवादियों की दुनिया च पूर्णमासी भी गई ते संग्रांत भी गई। ईश्वरवादी जैसे कबीर ने, कबीर कहते कोट सूर जाके प्रगास, कोट महादेव और कविलास। दुर्गा कोट जाके मर्दन करें, ब्रह्मा कोट वेद उचरें। जो जा चूं तो केवल राम, आन देव स्यों नाही काम। कबीर कहते मैनू चाहिए सिर्फ रब, और मेरा किसी देवी देवते नाल मतलब नहीं। आन देव स्यों नाही काम, और किसी देवते नाल मेरा कोई काम भी नहीं। गल खत्म। किसी देवी देवते नाल मेरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैनू पता चल गया है कि वो जो परिपूर्ण परमात्मा है वो करता है, कृत नहीं। ते देवी देवते कृत ने, अवतार कृत ने। गल इत्थे नहीं मुकाई कबीर ने, कबीर होर अगे जाते हैं। कबीर अगां चल के कहंदे ने कोटक कुमेर भरे भंडार, कोटक लक्ष्मी करे सिंगार। किहड़ी लक्ष्मी की पूजा करदे ते करोड़ां ने। मैं ते सिंघां दे घरां च भी देखिया, दिवाली वाले दिन लक्ष्मी की तस्वीर लै बैठदे ने, पूजदे ने, बई इहदे नाल धन आउंदा है। उंज कहंदे ने असीं धार्मिक हां ते इस तो वड्डा किहड़ा भौतिकवादी होना है, ते जे इहदे नाल ही धन आउंदा ते काम ते ना जाया कर, दिन रात इसी दी पूजा करिया कर, इस लक्ष्मी की पूजा करिया कर। कबीर कहंदे ने ये लक्ष्मियां मैं करोड़ां धक्के खांदियां वेखियां। कोटक लक्ष्मी करे सिंगार। गल इत्थे नहीं कबीर ने मुकाई, बड़े जिगरे नाल अगे गल कीती है। ते मैं शब्द दियां कुछ पंक्तियां थोड़े सामने रखदा पिया। ये पूरे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के सफे दिते शब्द है, पूरे शब्द, बहुत बड़ा शब्द है।
कबीर कहते ने सहस कोट बो कहत पुराण, दुर्योधन का मथया मान। जिन्हें दुर्योधन के मान नूं मिट्टी च मिला दिता वो कृष्ण भी करोड़ा ने, और जिसने रावण की सेना का सत्यानाश किया वो राम भी करोड़ा ने। इस अवस्था ते पहुंच के मनुख अवतारवादी नहीं रहिंदा। शर्मखंड की व्याख्या मैं कल करांगा। अज इत्थे समाप्ति, समा हो गया। वाहिगुरू जी का खालसा।